So the next topic is alienation. Okay, it's an important topic, and in examination you can get a chance where you will have to write about alienation. Even if you don't get a chance to write about alienation, and if there is a question related to work, okay, it is related to some form of relationship with work, process of production, or how working in an environment affects an individual's personality over a period of time, you can quote this. Okay, so what does alienation means? Okay, it means separation. Okay, so what actually leads to this kind of separation? So we talk about Karl Marx, and in Karl Marx he sees everything from the point of view of economy, and to live one must produce, process of production, or the product. Okay, so finally is what? Product. So who is producing it? An individual who is providing his workforce is producing this individual. So he is now not producing in order to survive or get some type of creative satisfaction. Okay, he is producing for the capitalist in order to make maximum profit. Okay, so once this comes into picture, that is, an individual starts producing product no more for creativity or survival, but for maximization of profit by the capitalist he or she gets alienated. Okay, gets alienated. So as per Karl Marx, what is the basic purpose? A man must produce in order to survive. And why a man is producing? In order to survive. See, I will tell you, in Bihar in last 10-15 years, what was happening is that the purpose of education was not to impart knowledge, or the purpose of education was not depending upon the quality of an individual. If an individual was very good in putting up his point, he or she could have become a lawyer. If they were very good in painting or some other activity which was highly recreational, or sports, or for music, they were highly discouraged. They might be very good in music, but they were discouraged to pursue music as a profession, because it was thought in music industry there is no stability and you won't be able to find work. So the entire purpose of getting higher education was what? The entire purpose of getting higher education was to find an opportunity or employability in the market, irrespective of your inclination towards it. So in those times, what was preferred? Either engineering or medical. In medical, seats were limited, and India was a booming cyber industry digital industry was highly booming. Okay, so what was left? To go for engineering. अब बच्चा chemical engineering कर रहा है, उसको chemical engineering में मान लेते हैं काफी इंटरेस्ट होगा, पर वो बच्चा एंड क्या करता है? जाकर के IBM में जॉब कर रहा है. He or she is writing codes. Okay, why? Because he or she could not find very good opportunity to work in chemical industry. Compared to chemical industry, they were getting good packages in IT industry, and going on site foreign countries
that opportunity was also available. So people, in spite of their natural inclination, chose to go for IT industry because it was well paying. So will they be able to give their best or relate with the product? सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इंश्योरेंस का, या फिर कुछ और चीज का प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, या टेस्टिंग कर रहे हैं, या कोड कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, विल दे गेट सेटिस्फैक्शन? नो. दैट्स द रीजन यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स परस्यूइंग MBA. After 3-4 years or 5 years or 6 years, they pursue MBA. Why? Because they are no more able to identify themselves with the process of production itself or the product itself, right? So they pursue MBA and go for change in their career. That's a possibility, right? But why it is happening? Why people are going for career change, right? Why all of a sudden there has been increase in vacant seats of engineering college? People are no more preferring it. Why? Because the middle class को थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया है. सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया है तो उन्हें लगता है कि चलो बच्चा सिक्योर है, बच्ची सिक्योर है, तो कुछ वो कर ले जिनमें उनको इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल लॉयर, जर्नलिज्म, लॉ, जर्नलिज्म, समथिंग लाइक दैट. और इफ यू सी people in colleges pursuing arts 10 years back, you will find majority in very famous college, majority of them, or law in famous college, law schools, majority of them would be coming from elite background, because elite background में sense of security रहता है, sense of security रहता है, पैसा का problem नहीं है, तो they will go in a profession where they will excel rather than in a profession where job is guaranteed, right? जॉब के लिए, काम करने के लिए अगर पैदा हुआ है तो बता रहा है कि आप मानसिक रूप से, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से तो तंग हैं ही. और अगर कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन भी किसी को ये बोलता था कि वन शुड गो फॉर इंजीनियरिंग और सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिस प्रोफेशन में ज्यादा है, तो वो मानसिक रूप से भी गरीब थे. ये भी एक फैक्ट है, ठीक है. So, अगर someone is pursuing a field where they are not interested and they have pursued it only for the purpose of earning an income or going abroad, they will feel alienated. ठीक है. फिर क्या होगा ना, जिंदगी वही होगी जो सब कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? A person, for example, I will give you an example of IT industry. Person is forced to become an engineer. इंजीनियरिंग किया, फिर MNC में गया. MNC में जाने के बाद द एंटायर पर्पस इज टू गेट ए गुड पैकेज और गोइंग अब्रॉड पर्पस, rather than delivering the best or being very creative. The entire purpose is this. So either they will look for opportunity where they can, or they will enhance their skill set, or various other means, buttering the seniors, right? ठीक है, पैकेज बढ़ा, ठीक है. फिर ऑन साइट जाना है. क्यों जाना है? क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा है. फिर इंडिया आना है आफ्टर 1 or 2 years or 3 or 5 years. फ्लैट लेना है अच्छा सा 2.5 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल. फिर इसके लिए लोन लेना है 1.5 करोड़. फिर इस लोन का EMI देने के लिए जॉब स्विच करना है, दूसरे MNC में जाना है, यहां पैकेज ज्यादा है, या फिर ऑन साइट के लिए फिर तिगड़म लगाना है, राइट. सो यू विल फाइंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट प्रोडक्ट और वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन इटसेल्फ बिकम्स एन एंड. ठीक है, तो आदमी क्या हो जाता है ना, बस मीन हो जाता है इस पूरे प्रोसेस का. वो इस प्रोडक्शन साइकिल में इसलिए है क्योंकि उसको इन सब चीजों को पूरा करना है. 1.5 करोड़ का EMI, 4 व्हीलर, राइट, 4 व्हीलर लेना है, फिर एक्सपेंसिव हॉलीडे टूर करना है, rather than giving their best. And that's the reason people burn out. People are highly frustrated in IT industry. Because of this kind of estrangement also, there is a psychological problem which hampers their personal relationship. High rate of divorce, ठीक है, high rate of divorce is not only because of abusive marriages,
It also because people are not finding sufficient amount of time to invest in relationship. That is also a fact. ठीक है. So अब क्या होता है ना, ये पूरे प्रोडक्शन साइकिल, जो प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट अपने आप में एंड हो जाता है और आदमी उसमें मीन्स हो जाता है, राइट. अगर इस आदमी को किसी एमएनसी में रिप्लेस कर दिया जाए दूसरे किसी आदमी से, तो प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, वो काम तो चल ही रहा है. ही और सी इज रिप्लेसेबल. ऐसा कुछ थोड़ी है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगा, नहीं. He or she is replaceable. Someone else will come at their position and work. So इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ये बस मीन्स हो जाते हैं और प्रोडक्ट इन इटसेल्फ बिकम्स एन एंड. और वो प्रोडक्ट का पर्पस क्या होता है? टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द एमएनसी, right? So what is now more important, the person or the product? The product is now more important. So people feel alienated from the process of production. That's the reason attrition rate is very high in IT sector. Attrition rate मतलब एक कंपनी ज्वाइन की 2 या 3 साल बाद लोग छोड़ देते हैं, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, थोड़ा ज्यादा पैकेज मिल जाता है, ठीक है. अगर सेम इंडस्ट्री में रहे, सेम कंपनी में रहे, तो पैकेज यहां भी 5-6 साल बाद उस बराबरी में आ जाएगा, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. बट द सेंस ऑफ एलिनिएशन, डिटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि दे नीड ए न्यूअर इन्वायरमेंट, न्यूअर पीपल टू इंटरैक्ट विथ, क्योंकि पूरा तनाव हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है. तो पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है. ये फर्स्ट स्टेज है. एलिनिएशन का फर्स्ट स्टेज क्या है? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनिएशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, ठीक है. सेकेंड, फ्रॉम द प्रोडक्ट. अब मैं उसको समझाता हूं. आई हैव टोल्ड यू अगेन, ए पर्सन वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑन सर्टेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है. मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हुआ. आप जो बैंकिंग सिस्टम से सामान पैसा ले रहे हो या किसी ऐप से ये मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, तो वो एक तरह का प्रोडक्ट है ना. वो ऐप किसी ने बनाया है, राइट, वो वेबसाइट किसी ने बनाया है, उसका यूज हो रहा है, राइट. तो इंश्योरेंस का भी एक वेबसाइट होगा, वहां पे सारे इंफॉर्मेशन भरने होंगे, राइट, तो उसका यूज हो रहा है. तो उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब ये काफी ह्यूज होता है, इसमें 50-60 यूनिट्स होते हैं, 3,000-4,000 लोग नॉर्मल रूप से काम करते हैं. ये बंदा उस 50 यूनिट में एक यूनिट पे काम कर रहा है, वो भी इसकी टीम काम करती है. मान लो टीम में 20 लोग हैं. इसे बस एक सब कंपोनेंट बनाना होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर. उसमें इसकी क्रिएटिविटी का क्या यूज है, क्या रोल है, ये फाइनल प्रोडक्ट से खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अपने आप, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार मेकिंग इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर है या फिर कोई भी काम कर रहा है वो, तो जो फाइनल कार बन रहा है वो असेंबली लाइन से बन रहा है, राइट. उसकी डिजाइनिंग के पे 50 लोग होंगे, उसकी वजह से जो कार है उसमें क्या चेंज आया है वो उसे पता नहीं है, ठीक है. ये ट्रक ज्यादा लग रहा है, कार कम लग रहा है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या चेंज आया है उसे खुद पता नहीं, या वो क्या रोल प्ले किया उसे खुद पता नहीं, ठीक है. कार से बाद में इसे सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, हर कोई कार खरीद रहा है, तो ये भी कार खरीदता है, ठीक है. अब इसकी आइडेंटिटी कार से है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज ड्राइविंग BMW, तो आपको लगेगा कि वो बंदा काफी पैसे वाला होगा, काफी प्रोमिनेंट पोजीशन पे होगा. कोई ऑल्टो चला रहा है या नैनो चला रहा है या लो बजट कार चला रहा है, तो आप जज करते हो ना, राइट. अगर कोई कैसा कपड़ा पहन रहा है उससे भी आप जज करते हो. आप नहीं जज करते होगे, आप महान हो सकते हो, पर दुनिया जज करती है. लोग खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. आई विल नॉट ट्रेवल इकोनॉमी क्लास, आई विल नॉट ट्रेवल 3rd tier AC और स्लीपर क्लास, आई विल गो फॉर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जाऊंगा या फिर बिजनेस क्लास में जाऊंगा, राइट. साल में 2 बार फॉरेन टूर होना चाहिए, हॉलीडे होना चाहिए, ताकि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाल लूं.
तो आपके फेसबुक स्टेटस से या इंस्टाग्राम स्टेटस से आपकी कीमत सोशल सर्किल में ज्यादा बढ़ती है. सो नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग, रादर द प्रोडक्ट विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय यू. आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे उससे आपकी आइडेंटिटी, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी नहीं हो रही थी. अब प्रोडक्ट की वजह से आपकी आइडेंटिटी होती है. ठीक है, समझ में आ रहा है. प्रोडक्ट अपने आप में एक एंड हो जाता है. लोग कहते हैं कि मैंने नासा में ये वाले प्रोजेक्ट पे काम किया, राइट. तो उस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी आइडेंटिटी बन गई, रादर देन उनकी वजह से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं. इक्के दुक्के लोग होंगे, नाम पे गिना सकते हैं, राइट, उंगली पे गिना सकते हैं, राइट. सो प्रोडक्ट जो मार्केट में है, जिसको हम और आप यूज कर रहे हैं, कितनी महंगी घड़ी है, उससे हमारी आइडेंटिटी तय होती है, राइट. तो आदमी का पहचान उसकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के नहीं ऊपर हो जाती है, रादर देन द प्रोडक्ट विच ही और सी प्रोड्यूसेस और इन अदर देन दैट ही और सी यूजेस. ठीक है. सो द प्रोडक्ट इटसेल्फ बिकम इन एंड इन इटसेल्फ. प्रोडक्शन का पर्पस क्या था? सर्वाइव करना. पर सर्वाइव करने के लिए थोड़ी ना BMW कोई खरीद रहा है, अपने स्टेटस को इनहैंस करने के लिए, सोशल पोजीशन अपना ऊपर बढ़ाने के लिए लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, राइट. सो प्रोडक्ट अपने आप में एक एंड हो जाता है. तो यहां पे बंदा सेकेंड फेज में प्रोडक्ट जो बना रहा है वो खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहा है. अब कार्ल मार्क्स के समय में सिर्फ वर्किंग क्लास थे और कैपिटलिस्ट क्लास थे, और जो प्रोड्यूस हो रहा था वही वो खरीद रहे थे. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के जिसमें वो हिस्सा थे, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था वो खरीद रहे थे. तो वो सर्वाइव करने के लिए, राइट, सॉरी, उस प्रोडक्ट की वजह से उनका स्टेटस हो गया, राइट. तो यहां पे एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट हो जाता है आदमी को, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, वो मास स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, पर उस पर्सन को वो चीज खरीदना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड और क्लास और हिज आइडेंटिटी. तो यहां पे उसका एलिनेशन भी हो जाता है प्रोडक्ट से सेकेंड स्टेज में, फ्रॉम प्रोडक्ट. ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है. ठीक है. अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? एलिनेशन फ्रॉम को वर्कर. ठीक है, देखिए कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का पर्पस क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. यहां पे लैंड फिक्स्ड है, कैपिटल टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योर खुद कैपिटलिस्ट है. लेबर जो है इसको सबसे ज्यादा स्क्वीज किया जाता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है. तब स्क्वीज जब किया जाएगा तो 8 घंटे या 9 घंटे या 12 घंटे की जॉब होगी, उसमें लेजर टाइम जो होगा जहां पे आदमी थोड़ा गपशप कर सकता है, कोवर्कर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, वो टाइम मिनिमाइज हो जाएगा. आप किसी भी एमएनसी में काम करो, 9, 10, 12 घंटे आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके कीबोर्ड सिर्फ दबा ही रहे होते हो, आपके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होता है. इफ यू गो टू मुंबई एंड वर्क ओवर देयर, यू विल फाइंड दैट यू विल गेट लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ योर कोवर्कर. आप शायद रेयरली ही किसी कोवर्कर के घर गए होंगे,
उसके घर का लोकेशन देखोगे, या आप रेयरली ही उसके किसी शादी, फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन में उसके पार्टिसिपेट करोगे। तो यहाँ पर सोशल इंटरैक्शन आपका मिनिमम होता है। यू गो इन ऑफिस, वर्क विद देम, you rarely interact with them other than the professional stuff, so you get alienated from your co-workers as well। आपको फर्क नहीं पड़ता, you are switching from one MNC to another MNC in order to change your co-worker, and there is no कोई इंटीमेसी ही है ही नहीं रिलेशनशिप में जो आप अपने co-workers को मिस करोगे, राइट। सो यू गेट टोटली alienated from your co-workers, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। थर्ड फेज में क्या होता है? एलिनेशन फ्रॉम द कोवर्कर। फोर्थ फेज में होता है एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। अपने आप से या हर सेल्फ, ठीक है। देखो, पहले मैन मतलब ह्यूमन बींग्स के केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग विच वाज मिनिमम फॉर सर्वाइवल, अपने लिए या सोसाइटी में लोगों के सर्वाइव करने के लिए। प्रोसेस ऑफ पर्पस ऑफ प्रोडक्शन वाज नॉट profit accumulation or wealth creation, it was only to survive for themselves and the people around them. So man used to do stuff which was something quite interesting to them, उन्हें मजा आता था वो चीज बनाने में, right? तो they were producing stuff for which they had natural inclination, it was also a reflection of their creativity, once it was reflection of their creativity, man was able to identify himself with his product. Right? So once man was able to identify himself with his product, he was able to find certain kind of satisfaction in his creativity, right? तो उसके खुद के होने की इंडिविजुअलिटी का कोई महत्व था, right? कुछ एग्जिस्टेंस था जिससे वो अपने क्रिएटिविटी को, अपने आप को आइडेंटिफाई करता था, एंड दे यूज्ड टू गेट इमेंस सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या होता है ना, जब आदमी इस प्रोडक्शन प्रोसेस साइकिल में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर ए कैपिटलिस्ट क्लास काम करने लगता है, तो अपने आप से भी लास्ट स्टेज में एलिनेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि व्हाट इज द पर्पस, ठीक है। सो यू विल फाइंड मेनी ऑफ पीपल दोज हु हैव accumulated good amount of wealth, highly being professionally successful, you will find that at one stage they will give up everything and they will look for some kind of spiritual, ठीक है, या फिर पूरी तरह से एलिनेटेड हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि कोई उनका पर्पस है, तो अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए दे गिव अप जॉब बिकॉज दे हैव फाउंड देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब उन्हें काम करने में मजा नहीं आ रहा है, 3-4 करोड़ बाहर में जाके पैसे कमा लिए, या दे हैव चेंज देयर प्रोफेशन, दे हैव स्टॉप बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बैंकिंग प्रोफेशनल, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस और दे हैव स्टार्टेड देयर ओन रेस्टोरेंट जिसमें उन्हें मजा आ रहा है। तो ये देखो, कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिम्मेदार नहीं माना है, कैपिटलिज्म को जिम्मेदार माना है एलियनेशन के लिए। यहां पे आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से उन्होंने कभी भी जिम्मेदार नहीं माना, उन्होंने माना है कैपिटलिज्म जो है, जिसका सिर्फ एकमात्र पर्पस ये है कि आदमी प्रोड्यूस करे फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ
प्रॉफिट, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जिम्मेदार नहीं माना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से असेंबली लाइन सिस्टम आ रहा है, ठीक है। टीम को ऐसा बनाया जा रहा है कि टीम छोटे छोटे पार्ट्स में बंट गए हैं, लोगों का स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, जिससे काम बहुत तेजी में होता है, मास प्रोडक्शन ज्यादा है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। इस 2-3 कारण की वजह से आदमी एलिनेटेड होता है, ठीक है। जब आदमी खुद से भी एलिनेटेड हो जाता है तो उसको लगता ही नहीं कि व्हाट इज हिज और हर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका क्रिएटिव बीइंग मर जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है एलिनेशन का, ठीक है। आदमी एकदम अपने आप से एलिनेटेड हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता व्हाट इज हिज और हर पर्पस, प्रोडक्शन साइकिल में वो कहाँ है, वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्रिटिसिज्म और थोड़ा डिटेल देखेंगे।